بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا جانے لگا تو اس کے قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عبدالرحمن نامی ایک گورکند اس قبرستان کی جانب جانے لگا جہاں پر ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر بنانی جانی تھی۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کے جانب آگے بڑھ رہا تھا اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر مانو ایک بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہو۔ اس کو ایک دن پہلے اسے بتا دیا گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی قبر کو تیار کر دینا تاکہ اسے دفنا سکے۔ گورکند کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت، ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہو۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی عبدالرحمن قبر کھودنے کے لیے اس جانب آ چکا تھا۔ قبر کھودنے کے سارے اوزار اس کے پاس موجود تھے، مگر جو بات اس کو عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب کبھی بھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ قدم مانو بھاری ہو چکے تھے۔ قبرستان میں پہنچ کر ایک مقام پر قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ دیکھی گئی۔ اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ گورکند یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، دوسرے جانب سے قبر کھودنا شروع کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی دوسری ہی جانب سے قبر کھودنے شروع کی تو اس کے سامنے ایسا آیا کہ گورکند پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ اپنے آستین سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا، سوچنے لگا کہ یا الہی، یہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سینکڑوں قبریں میں آج سے کھود چکا ہوں لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ گورکند گھبرانے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکنیں زور ہو چکی تھی اور وہیں ایک جانب بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ اتنے میں ہی اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے تھے کہ فی امان اللہ، خدا تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ اس نیک کے وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریب رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی۔ ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ ثواب دارین حاصل کرنے کے خاطر یہ سب جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت دفن کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی جبکہ گورکند عبدالرحمن حیرت سے انگلی منہ میں ڈالے اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زوروں شوروں سے بلند تھا۔ جب گورکند کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چین اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بے حد پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو۔
तभी तो लड़की होकर इसके जनाजे में इतने ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन जो हालात कब्र के अंदर मौजूद थे, गोरकंद शायद घबरा चुका था और अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र इसके लबों पर मौजूद था। जब इस लड़की की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूं महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोगों ने ये मंजर देखा तो इससे पहले सबके रंग उठ चुके थे। इससे पहले कि वो इस लड़की को कब्र में दफन करते, वहां पर एक बहुत बड़ा काले 2 मुंह वाला सांप जमीन से बाहर निकल रहा था। वो मैयत में अपना डंक गाड़ने जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद लोगों ने खौफ से चिल्लाते हुए मैयत को कब्र से ऊपर के जानिब खींच लिया था। सांप इस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र से सांप और बिच्छू निकलता देखकर वहां पर खड़े हुए लोगों की चीखें निकल गई और आसपास के लोगों में भी ये बात फैल गई। लोग कहने लगे कि ये देखो, कब्र से सांप निकल आया है। अस्तगफिरुल्लाह, अरे ये तो हाफिज कुरान थी, इसके कब्र में सांप कैसे निकल सकता है। ये लड़की तो कई बच्चों को और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी दर्स दिया करती थी। इससे ऐसी कौन से कोताही और गुनाह हो गया जो इसके कब्र से इतना बड़ा काले रंग का सांप और बिच्छू निकल आए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कब्र से दूर हटकर खड़े हो चुके थे। कोई भी कब्र के करीब जाने को तैयार ही नहीं था और न ही इस मैयत को उठाकर कोई भी कब्र में दफन करने के लिए तैयार ना था। गोरकंद से कहने लगे कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। गोरकंद लोगों के कहने पर दूसरे कब्र को खोदने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन दूसरे कब्र खोदते ही वही मंजर, भयानक मंजर देखने को मिला। वहां पर भी बहुत ज्यादा सांप और बिच्छू बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे। जब ये मंजर वहां पे मौजूद 2 लोगों ने देखा जिसके बच्चे इस हाफिज कुरान लड़की के पास दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, तो वो लोग एक बहुत बड़े आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हो गए। आलिम दीन अपने ख्वाबगाह यानी कि अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। अल्लाह के बहुत बड़े नेक और बुजुर्ग थे जो आलिम दीन थे। इनके गांव में किसी की किस्म का कोई मुश्किल हादसा पेश आता या कोई किस्म की कोई परेशानी होती तो तमाम गांव वाले इनके पास आ जाया करते थे। पूरी रात ये अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। पूरा दिन ये रोजे में गुजार देते थे। इनकी नेक नामी पूरे गांव में मशहूर थी, इसलिए वो 2 आदमी जल्दी से भागते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब इन्होंने 2 आदमियों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो फौरन उठकर बैठ गए और इनको यूं घबराया हुआ देखकर खुद भी परेशान हो गए और पूछने लगे क्या माजरा है। वो जो कुछ अपने आंखों से देख कर आए थे सब कुछ मौलाना साहब को बता दिया। इसे सुनने के बाद तो मौलाना साहब की आंखें हैरत से खुल चुकी थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे। फिर कहा कि मुझे भी कब्रिस्तान ले जाओ। वो कब्र जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वो इस कब्रिस्तान में पहुंचे तो लोग हड़बड़ा कर देख रहे थे, रास्ता खाली कर रहे थे। मौलाना साहब खुद यहाँ पर तशरीफ ला चुके थे। मौलाना दिल ही दिल में दरूद पाक पढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर ये क्या माजरा हुआ है। मौलाना साहब ने एक नजर लड़की की मैयत पर डाली और दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद खड़े लोगों की जानिब डाली। एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे, कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था। मौलाना साहब ने जब कब्र में झांक कर देखा तो इनका वजूद कांप चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा और मौलाना साहब के खिदमत में सलाम पेश किया। फिर कहने लगा कि मेरी जिंदगी आप पर फिदा हो, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, पहले इस लड़की की कब्र पर
पत्थर और कंकर निकलते रहे जो वजूद में चुभने वाले थे। तीसरी मर्तबा जब कब्र खोदी गई तो कब्र में से सियाह रंग का बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। फौरन इस लड़की को कब्र को दूसरी जगह खोदा गया। जब कब्र को खोदा गया वही माजरा वहां भी देखने को मिला। हर कब्र में सांप और बिच्छू ही निकल रहे हैं। मौलाना साहब अपनी आंखें बंद करके पीछे हट चुके थे, क्योंकि इस वक्त कब्र में बहुत बड़ा सांप मौजूद था और कब्र की दीवारों से यूं मट्टी हिलती हुई महसूस हो रही थी कि जैसे कि अनगिनत बिच्छू बाहर निकल रहे हो और बाहर आने के लिए तड़प रहे हो। मौलाना साहब ने ये मंजर देखकर घबरा गए, आंखों में आंसू आ गए। बुलंद आवाज में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद मजमा हाफिज कुरान लड़की की तमाम तर मालूमात मौलाना साहब को दिए जा रहे थे। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाया जाए। आखिर ये क्या माजरा है? ऐसा कौन सा गुनाह था जो ये लड़की किया करती थी? अल्लाह ताला ने इस पर ये अजाब ऐसा नाजिल कर दिया। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें किया कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे, हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा, अरे हम तो इसे बहुत बड़ा नेक समझते थे। हाफिज से कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में तालीम दिया करती थी। यह वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया है। जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी छा गई। लोग बाअदब खड़े हो चुके थे। मैयत को किसी हकीमा औरत के सुपुर्द कर दिया गया और खास कहा गया कि इस लड़की को पूरे जिस्म की जांच की जाए और देखा जाए कि ऐसा क्या गुनाह किया करती थी जो इसके साथ ऐसा हुआ है। बहरहाल लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब लड़की की मैयत कब्र में दफनाई भी जाएगी या नहीं। जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गुनहगार है। तभी तो जमीन ने भी कबूल नहीं किया इसको। मौलाना साहब ने कहा कि खामोश हो जाओ। अल्लाह के हुजूर कौन कितना मुकाम रखता है, कौन कितना गुनहगार है, ये तो वही जात बेहतर जानता है। ये सुनते ही सब लोग खामोश हो चुके थे, लेकिन दिल ही दिल में सभी के लिए ये बात घूम रही थी कि आखिर बिच्छू और सांप एक हाफिज कुरान लड़की के कब्र से कैसे निकल सकते हैं। मौलाना साहब सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए जाया करते थे, इन सब को यहाँ बुलाया जाए। मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे। मौलाना साहब आगे बढ़े, बच्चों से बड़े ही प्यार से सवाल करने लगे, क्या तुम्हारी दीनी उस्ताद ने तुम पर कभी हाथ उठाया करती थी या सख्ती बर्ताव किया करती थी? ये सुनकर बच्चे खामोश हो चुके थे। फिर कहने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी थी। हमने तो पहला उर्फ ही इनके पास आकर सीखा। इन्होंने कभी भी किसी बच्चे के पास सख्ती नहीं की और ना ही किसी बच्चे को मारा था। मौलाना साहब ने सवाल किया, इस लड़की के घर में कोई और शख्स मौजूद है? तो आदमी वहां पर आए और बताने लगे, इसके घर में सिवाय इसके कोई और नहीं रहता था। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। ये वो अकेली रहती थी। न जाने तन्हाई में इसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो अल्लाह पाक ने अजाब के सूरत में इसके कब्र में सांप और बिच्छू ही बिच्छू डाल दिए। मौलाना साहब बेहाल हो चुके थे। तो लड़की ऐसी थी कि जिसके किरदार पर एक भी दाग नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोग इसकी इज्जत भी किया करते थे और इसकी तारीफ भी किया करते थे, लेकिन अब इसके मरने के बाद इसकी बुराई कर रहे थे।
मौलाना साहब खामोशी से अपने हुजरे में गए और 2 रकात नमाज अदा करने लगे। फिर नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद किए कि ए मेरे अल्लाह, ए कुल कायनात के मालिक। मौलाना साहब अल्लाह के हुजूर इस कदर रोए कि इनका चेहरा मुबारक आंसू से भीग गया था, दाढ़ी भी भीग चुकी थी। फिर सवाल करने लगे कि मेरे मालिक, आज से पहले मेरे तेरी जात को हाजिर नाजिर जानकर हर फैसला किया है, आज भी मेरी मदद फरमा। इस लड़की ने ऊंचा गुनाह कर दिया है, जमीन इसको कबूल नहीं कर रही है। रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका था। बार बार सोच रहे थे कि क्या मामला है। इसके घर में सिर्फ यही तन्हा रहती थी। सारा दिन लड़कियों और लड़कों को दीनी तालीम दिया करती थी। मौलाना साहब परेशान हो चुके थे। कुछ बच्चों का तो ये भी कहना था कि हमारे उस्ताद 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कभी भी वक्त को जाया नहीं करती थी। आखिर इतनी नेक लड़की, इसके कब्र में सांप और बिच्छू, ये एक अनोखा वाक्या था कि मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। इस लड़की के घर में तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जब सवालों जवाब दिए गए तो ये सब सामने आया कि इस लड़की की एक बहुत पक्की सहेली थी, जिससे ये अपना हर बात, हर राज जाहिर किया करती थी। मौलाना साहब ने कहा कि इसकी सहेली को बुला लाओ। एक आदमी बोला, वो लड़की तो कहीं माह पहले ही इलाका छोड़कर जा चुकी है। लोगों का कहना था कि दोनों सहेलियों में किसी बात को लेकर अनबन हो चुकी थी, तो वो नाराज होकर इस गांव को छोड़कर चली गई है। मौलाना साहब को हैरत हुई। यकीनन कुछ तो राज था इसके पीछे जो इसकी सहेली को मालूम था। इसीलिए मौलाना साहब ने फौरन 2 आदमियों को दूसरे गांव जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि इसकी सहेली को लेकर आओ। फिर वहां पर वही हकीमा औरत आई जिसके हवाले इस हाफिज कुरान लड़की की मैयत को दिया गया था। वो थोड़ी घबराई हुई थी। मस्जिद में दाखिल हुई तो मौलाना साहब ने इसको देखा तो माथे पर बल पड़ गए। सवाल करने लगे कि बताएं, आपने इस लड़की के वजूद पर क्या जांच पड़ताल किया है, कुछ मालूम हुआ है? कहने लगी मौलाना साहब, ये लड़की तो बहुत ही नेक और पाक दामन है। मुझे इसके किरदार से बाल बराबर भी शक नहीं हुआ। ये सब कुछ सुनकर मौलाना साहब खामोश हो चुके थे कि अगर ये लड़की पाक दामन थी और इसे कोई गुनाह भी नहीं हुआ तो फिर आखिर क्या वजह थी कि ये सब कुछ हो रहा था। हकीकत तो तभी मालूम हो सकती थी जब इसकी सहेली यहाँ पर आ जाए। अब तो वही थी कि जो अपने मुंह से बोलकर हकीकत बता सकती थी। कई कई तरह के सवालात थे जो खड़े थे। फिर किसी ने ये कहा कि ये लड़की अकेली रहती थी, यकीनन रात में किसी लड़के को बुलाकर इसके साथ जिना किया करती होगी, इसीलिए इस पर ये अजाब आ रहा है। वहां पर मौजूद हर शख्स इसके किरदार पर जा रहा था। यकीनन ये लड़की जिना ही करती होगी। दिन की रोशनी में नेक बन जाती थी और रात में गुनाहों में डूब जाती थी। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वो आदमी इस लड़की को यानी इसकी सहेली को लेकर नहीं आए थे। अजीब सी कश्मकश का माहौल बना हुआ था। फिर अचानक आवाज आई कि इस लड़की की सहेली मिल चुकी है। मौलाना साहब, जो कि अपने बदन पर थकावट महसूस कर रहे थे, खामोश होकर एक साइड पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही फौरन तेज कदमों से उठकर आगे बढ़े। वो लड़की सामने मौजूद थी, मुकम्मल पर्दे में थी और कम उम्र की लग रही थी और लड़की मौलाना साहब को देखकर रोने लगी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ क्या मामला पेश आया है। इन लोगों ने जब मुझे आकर बताया मेरे दोस्त के खबर पर यह मामला पेश आया है और फौरन से आपके पास आ गई। मौलाना साहब ने इस लड़की को देखा तो अगले ही लम्हे इसको कहने लगे कि तुम जानती हो ना कि हमने तुम्हें यहाँ पर इस मकसद से बुलाया है। पूरे गांव में इस लड़की की कई कई तरह की अफवाहें फैल चुकी है। लोग कहीं कहीं तरह के सवालात इसके जात पर कर रहे हैं और कहते हैं कि ये लड़की
अपने गुनाहों के बदौलत इस नौबत तक आ पहुंची है। इसके कब्र में सांप और बिच्छू आ गए हैं। यहाँ तक कि गोरकंद ने कई मर्तबा सांप को कब्र से निकालना भी चाहा, लेकिन कब्र में बैठा हुआ सांप इंतहाई खौफनाक नजरों से इस मैयत को देखे जा रहा है, जैसे वो इस लड़की को डसना चाहता हो। अल्लाह ताला का वास्ता है कि तुम हकीकत बताओ, इस लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया है? पहले तो इसकी सहेली रोने लगी, आंखों में आंसू आने लगे, फिर कहने लगी ये कोई गुनहगार नहीं थी, ना तो जिना करने वाली थी, अमानतदार लड़की थी। हाँ, लेकिन इसने एक गुनाह जरूर किया था, बहुत ही बड़ा गुनाह, जिसके वजह से मैं इससे दूर हो चुकी थी और इससे सारे रिश्ते नाते मैंने तोड़ लिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो एक मर्तबा फिर से मैं इससे राब्ता जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इस जैसे लड़की से मेरा राब्ता रखना मेरे लिए आसान नहीं था। मौलाना साहब इसकी बातें सुन रहे थे, फिर पूछने लगे कि तुम बताना शुरू करो, आखिर इस लड़की ने इसने ऐसा क्या किया? वो लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि मौलाना साहब, मैं इस लड़की की पड़ोस में रहती थी। हम दोनों एक साथ ही कुरान मजीद का हिफ्ज किया था, मगर क्योंकि इसके वालिद पहले ही वफात पा चुके थे, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी इस पर थी। फिर घर के खराब हालात की वजह से इसने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया और एक हदिया मुकर्रर किया। जो बच्चे भी इसके पास कुरान पाक पढ़ने आते, मखसूस हदिया दिया करते थे। यूं ही इन दो माँ बेटियों का गुजारा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरने लगी, इस हाफिज कुरान लड़की की वालिदा को दौरे पड़ने लगे। वो शदीद बीमार रहने लगी। बीमारी और तेज बुखार का असर इनके दिमाग पर ऐसा हुआ कि वो पागल हो गई और इनको कुछ भी याद नहीं रहता था। बच्चों की तरह हरकतें किया करती थी। पहले तो मेरी ये सहेली अपने माँ के लिए बहुत रोया करती थी, इनका बहुत ख्याल भी रखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने माँ से बदसलूकी करने लगी। माँ के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाती थी। इसकी माँ रफ़ाए हाजत के लिए अपनी बेटी को बुलाया करती थी, तो वो सुनती ही नहीं थी। इनकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि कहती थी कि मैं फला काम कर रही हूँ, इसके बाद आ जाऊंगी। माँ यूं ही बिस्तर पर बहकाना पेशाब कर देती और वो खराब हो जाता। कई दिन तो वो अपनी माँ का बिस्तर भी तब्दील नहीं करती थी। इसका दिल करता तो वो अपना माँ को खाना दिया करती थी, वरना वो बेचारी भूखी प्यासी ही बैठी रहती और वो खुद बच्चों को दर्स देने में मसरूफ रहती थी। जैसे जैसे मौलाना साहब इस लड़की के मुंह से ये सब सुन रहे थे, ये परेशान हो रहे थे। गुस्से से इनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगे कि ये लड़की सभी लोगों के साथ तो बहुत अच्छी थी, नेक काम करती थी, 5 वक्त की नमाज भी अदा करती थी। हर नमाज के बाद माँ के लिए दुआ करने लगी कि या अल्लाह, इसे अपने पास बुला लो। अल्लाह पाक, मैं अपनी माँ की खिदमत कर कर के थक चुकी हूँ और ये वफात पा जाए तो अच्छा है। ये मुझे ठीक से इबादत भी करने नहीं देती। बच्चों को पढ़ाने का भी टाइम नहीं रहता। ये बच्चों को पढ़ाने में रुकावट आती है, जिसके वजह से बार बार गुस्ल करना पड़ता है। एक रोज मैं वहीं मौजूद थी जब इसकी माँ इससे पानी मांग रही थी। वो बेचारी बार बार इसे पानी के लिए बुला रही थी, लेकिन इसने एक ना सुनी। मैंने खुद जाकर इन्हें पानी पिलाया। इसकी माँ मेरे सामने रोने लगी। इसके आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए मुझे अपनी बेटी की शिकायत करने लगी। लेकिन जब मेरी सहेली ने सुना तो वहां पर आई और अपनी माँ को एक जोरदार तमाचा दे मारा और गाली देने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सारे कमाई तुम्हारे इलाज पर लगा दिए, फिर भी तुम मुझे बातें सुना रहे हो, लोगों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। इतना सुनना था कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ।
میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، میں ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کے والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا گیا۔ آج اس کے والدہ کا انتقال ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، حقوق العباد پورے نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر کبھی اف تک نہ کرو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں صحیح سب لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگ لی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت ہی زیادہ پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اس لڑکی کے لیے استغفر اللہ کا ذکر کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک جانب سے وہ سانپ وہاں پر موجود تھا اور ان گنت بچھو بھی فن پھیلائے ہوئے وہاں پہ موجود تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستوں، ایک بات یاد رکھنا، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں باپ کے شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی اس دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل اور خوار ہی رہتا ہے، نہ ہی اس کو قبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت کرتی ہے، اور اس کے اولاد بھی اس کے کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے شان کے مطابق معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، نیکی اور ثواب کی نیت سے اس واقعے کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں ہو جائے اور اس کا ثواب ہمارے نصیب میں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔